Now another question. Now another question that is so important in report writing is facts. As I said that there are three very important points in any discussion of writing. Two extreme points are right writings actually which are based on facts, and other is writings which are based on feeling and sentiments, and in between there is writing which is based on reason. So one writing is in the nature of report, this writing is in the nature of a poem, and in between we have writing which makes arguments. Now I come to this very important question, facts. जब भी आप लिख रहे हैं, कोई भी चीज लिख रहे हैं, वहां पर फैक्ट्स जो हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है यहाँ पर लिटरेचर और सोशल साइंसेस है, तो फैक्ट्स का भी नेचर बहुत अलग अलग हो सकता है। फैक्ट्स किसी पर्सन के बारे में हो सकते हैं, फैक्ट्स किसी पर्सन के नाम के बारे में हो सकते हैं, फैक्ट्स किसी पर्सन के नाम की स्पेलिंग के बारे में भी हो सकते हैं, फैक्ट्स किसी पर्सन की लाइफ के बारे में भी हो सकते हैं, फैक्ट्स किसी पर्सन की लिखी हुई किताबों के बारे में भी हो सकते हैं, फैक्ट्स किसी पर्सन की किताब कहाँ छपी है उसके बारे में भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कभी कभी एक लाइन लिखने के लिए आपको उन फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। दैट मीन्स इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रॉस चेक फैक्ट्स व्हेन यू आर स्टेटिंग सम फैक्ट्स। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं। आई वाज रीडिंग अ बुक, and that book included a reference to in that actually in that book I saw a particular date also, date of birth. Now that date of birth, I found that probably that year was not proper. That was not proper. I had a doubt. When I had that doubt, I felt that maybe I must cross check that. And that book was published by Oxford University Press. But I will forgive the writer and the editor, because sometimes mistakes can occur even in a book which uses lots of facts. And that book actually used lots of facts, but still there was a mistake. So that was about the year. Now there can be other things also. And one particular thing which we have to really guard against, especially in the period of Google, is that we are not mixing facts about two different persons who have the same name. It is very, very possible that you have two persons of the same name. But if you Google, you'll find information about both, maybe with the same spelling also. And in that case, there can be a serious, very serious case of mix up. Again, I'm giving you one example. I once asked a gentleman to write a paragraph on one particular person. His name was Muhammad Yunus, not Muhammad Yunus of Bangladesh, but one Muhammad Yunus who was associated with Gandhi family, and especially who was associated with Pandit Jawaharlal Nehru. Now that this paragraph actually had to appear in a book, I was associated with that book. When I saw that paragraph, I found that paragraph excellently written. There was no issue of grammar in that paragraph. There were facts also, and the language was also very, very good. So I did not see any problem in that. Later, when I read that paragraph again very attentively, first reading was just very cursory reading, because how much time do you take to read a paragraph? Just maybe
2-3 minutes. But later, when I read that paragraph critically, I noticed a serious problem. And the problem was the writer in this case Googled the name of Muhammad Yunus and he found two Muhammad Yunus. He did not make a distinction. He found two different articles on that person. But these two articles were about two different Muhammad Yunuses. But he did not know, he did not suspect that, and he included facts from the lives of both and converted them into one article without really suspecting that he was writing about two persons and mixing up facts and writing just one paragraph, but there were serious mistakes. So in this case, actually, in this case, what happened was that Muhammad Yunus and some facts of Muhammad Yunus's life were actually were actually mixed up. Two Muhammad Yunuses were mixed up. So what we see here, a serious case of mix-up, a serious case of mix-up. And if something of that nature is published, then obviously there will be serious embarrassment for the writer because the writer can be forgiven for writing grammatically incorrect English, but a writer cannot be forgiven easily for presenting wrong facts, especially those facts which can be verified very easily. And how facts can become very important, that is also something to be discussed. One, and sometimes there can be very minor issues also, subtle issues also, but a lot of hard work is required to cross check facts in writing. Shashi Tharoor wrote his book, one book I'm just referring to, in the acknowledgement section he acknowledged the help of somebody for fact checking, and all big publication houses actually, they are very very particular about presenting facts, but they also trust their authors. So in that case, if a publication house is trusting its author, then author has to be careful also about presenting those facts. Two examples, and I'm trying to just take up all these examples which actually I have seen, and how, for example, uh, you can in fact learn through example that how sometimes there are serious things involved. I was doing a book on the history of Aligarh Muslim University, and I was writing a chapter on famous alumni of the university who have contributed in the field of art and literature. And one such person was Akhtarul Iman. अख्तरुल ईमान, जो अपने नाम उनका शायद वैसे नहीं आपको याद आए, वो लिखते थे फिल्मों में लिखते थे, जो बहुत मशहूर लाइन है वो आपको शायद याद होगी, जिसमें पुरानी फिल्में देखने के शौक है कि चुनाव सेठ जिनके मकान शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरों के मकानों में पत्थर नहीं फेंका करते। शैलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने देखी है ये राजकुमार का बहुत मशहूर डायलॉग है। तो उस तरह के जो बहुत सी फिल्में थी तो उसमें उनके लिखे हुए डायलॉग होते थे, बहुत सटीक डायलॉग। ये अख्तरुल ईमान के लिखे हुआ था, अख्तरुल ईमान का, जैसे वक्त फिल्म के थे या और भी बहुत सी फिल्मों में। तो अब मुझे जो चैप्टर लिखना था, तो मेरे सामने इशू ये था कि मुझे अख्तरुल ईमान के बारे में सही फैक्ट्स भी लिखने थे। एक फैक्ट तो ये है कि वो एक सिर्फ फिल्मों में ही नहीं लिखते थे, वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे और उनको साहित्य अकेडमी शायद अवार्ड भी मिला है। तो बहुत अच्छे कवि भी थे, बल्कि उर्दू शायरी के अंदर एक परंपरा उस तरह की शायरी की रही है जो शायरी बहुत ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल सेरिब्रल किस्म की शायरी, जो मतलब उसके अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म की शायरी,
और बहुत ही जैसे बौद्धिक किस्म की शायरी, तो वो बौद्धिक कविता जो है वो अख्तरुल इमान को उससे जोड़ा जाता है। एक और एन.एम. राशिद है, वो भी बहुत ही बौद्धिक किस्म की कविता जो उसमें। तो क्योंकि कविता उनका वो बिल्कुल अलग उनका क्षेत्र था, और कविता जो है उन्होंने जाहिर है जो उनके कलेक्शंस थे, तो उसका संबंध जो है उनकी फिल्म की जो लेखन था उससे नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर उनके फिल्म के लेखन के बारे में भी लिख रहा था। अब देखिए इशू इसमें फैक्ट चेकिंग का क्या इशू आता है इसमें। हम ये कहते हैं कि साहब हाँ अख्तरुल इमान रोट वक्त, या अख्तरुल इमान रोट फॉर एग्जाम्पल एनी अदर फिल्म। अब इसमें जो इशू आता है फिल्म लेखन के बारे में, ये इतना सिंपल नहीं है। आप ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि साहब आर के नारायण ने गाइड लिखी। आप ये कह सकते हैं कि साहब अरुंधति रॉय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी, ठीक है। लेकिन फिल्म लेखन में लेखन के भी जैसे तीन अलग अलग उसके एरियाज हैं। फिल्म लेखन में एक कहानी होती है, कहानी किसकी लिखी हुई है। फिल्म लेखन में स्क्रीन प्ले होता है, वो किसका लिखा हुआ है। फिल्म लेखन में डायलॉग्स हैं, वो किसके लिखे हुए होती है। कभी कभी ये तीनों चीजें, कहानी, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले, तीन अलग अलग लोग लिख सकते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा इस स्टोरी, डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले बाय सलीम जावेद, ये भी होता है। तो अब इसमें फैक्ट चेकिंग में मैं जब इसको देख रहा था अख्तरुल इमान पर, कहीं विकिपीडिया पर या कुछ और जगहों पर देख रहा था, तो उसमें ये आ रहा था भाई उन्होंने ये लिखी, लेकिन इसको हम किस जगह जाकर हम ढूंढें इस फैक्ट्स को। तो मेरे सामने अब आज की डेट में फायदा ये था कि बहुत सी पुरानी चीजें, जो पुरानी फिल्में जो थी उन्होंने लिखा, वो यूट्यूब पर भी जो है वो अवेलेबल थी। तो खैर वो उतना हिस्सा फिल्म का देखकर जहां पर क्रेडिट्स आते हैं, इससे ये अंदाजा हुआ कि हाँ इन्होंने उसके डायलॉग्स लिखे हैं और यहाँ पर उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है या ये कहानी लिखी है, वो फैक्ट्स क्लियर हो गए। तो अब हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि भाई अख्तरुल इमान रोड, हम उसमें और ज्यादा एग्जैक्ट होकर लिख सकते हैं ही रोड द डायलॉग्स ऑफ और ही रोड द स्क्रीन प्ले ऑफ। So this is one level of fact checking. And here actually for writing just one sentence, I had to watch, say, parts of those films also, which I was mentioning in that paragraph on Akhtarul Iman. So this is actually by way of checking our facts. What are those facts that we are writing and how exact are we in putting those facts? देखिए इसी तरह से स्पेलिंग का भी है। मैं एक पीएचडी वाइवा में बैठा हुआ था, और उसमें जो स्टूडेंट ने पीएचडी लिखी थी, तो उधर एग्जामिनर थे, हमारे दोस्त हैं सुशील कुमार शर्मा साहब, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोफेसर हैं। और उन्होंने वहां से पॉइंट आउट कर रहे थे, वो रिसर्च के स्टूडेंट को वो थोड़ा सा मतलब डांट भी रहे थे कि भाई तुम्हें मतलब जो है ये वाजपेयी जो है लिख रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी, तो नाम की तुम्हें मतलब जो है स्पेलिंग तुमने ठीक से नहीं लिखी वाजपेयी की। अब देखिए अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी लिख रहे हो, मनोज वाजपेयी लिख रहे हैं, तो दोनों के नाम की स्पेलिंग में फर्क है। तो आपको ये देखना है वाजपेयी है या वाजपेयी है, तो अब आपको ये देखना है कि अगर आप अशोक वाजपेयी लिख रहे हैं, मनोज वाजपेयी लिख रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी लिख रहे हैं, तो तीनों के वाजपेयी में क्या अंतर है। तो ये एक फैक्ट चेकिंग ये भी है, यानी कि स्पेलिंग भी जो है आपकी। और इसमें थोड़ा सा एक और पहलू जोड़ दूं कि कभी कभी और कितनी बारीकी उसमें शामिल हो सकती है। आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन सिनेमा, एक बल्कि वो किताब एक है जो आने वाली है बार उसमें सिनेमा पर, ये है वो आ गई है, बल्कि अगर आप उसको गूगल करेंगे तो वो आपको खैर मिल जाएगी, लेकिन वो उसकी रिलीज जनवरी में है। ये इसको रूट टेलर एंड फ्रांसिस ने छापा है। उसमें बहरहाल जो एक इशू ये भी आ रहा था कि कुछ हमारे फिल्म के एक्टर्स भी जो हैं, अगर हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक उनका नाम जो है अजय देवगन जो है, अपना नाम देवगन पूरा जो स्पेलिंग आप लिखेंगे देवगन वो लिखते थे। बाद में उन्होंने देवगन की स्पेलिंग डिफरेंट लिख दी। अब अगर हम
कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बात की तो हम देखेंगे ये स्पेलिंग की। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है, अगर आप देखेंगे, ये अंग्रेजी फिल्मों में के बारे में लिखने में ये इशू नहीं आता है, ये हिंदी फिल्मों में लिखने में ये इशू आता है कि अंग्रेजी फिल्मों में तो जो नाम है उसमें अगर फाइट क्लब फिल्म का नाम है तो वो फाइट क्लब की स्पेलिंग वही है जो फाइट क्लब है, आप लिखेंगे वैसे अंग्रेजी में। या आप अगर आप किसी और दूसरी फिल्म को लिखेंगे, अब हिंदी में तो कभी कभी वो दूरियां एक फिल्म थी, उसमें ट्रिपल ओ लिख दिए उन्होंने दूरियां में। अब दूरियां मतलब आइडिया ये था कि इतनी दूरियां हैं कि हमें ट्रिपल ओ लिखना पड़ रहा है। या आपको एक और एग्जांपल दूं उसमें, अब वो कभी कभी बहुत मशहूर फिल्म थी, अब आप दोबारा जरा सा देखिएगा तो उसमें दोनों कभी कभी की स्पेलिंग अलग अलग है। एक कभी की स्पेलिंग दूसरी और दूसरे कभी जो दूसरा है उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। अब आपको क्योंकि अगर वो उस पर लिखना है तो आपको इन छोटी चीजों की तरफ भी ध्यान आपका जाएगा और देना चाहिए उसमें, क्योंकि कोई पॉइंट आउट कर सकता है। सो दैट इज फैक्ट्स एक्चुअली, facts can relate to the ear, facts Sir, can. the same case is in St. called is the rhyme of the ancient mariner. That's right, that's right. Or uh, William Blake's poem Tiger, for example. Yes, sir, tiger. Okay, William Blake's poem Tiger. Yes, good. Good example, Prachi. Thank you. So here for example, we saw, for example, this care which can be taken in putting spelling. And then, of course, at another level of fact, putting facts, you can see that I mentioned here, sometimes books also. And I am telling you, in my own university, sometimes professors introducing a speaker by attributing him or her books he has not written. And why? Because you want to introduce a speaker. You want to introduce a speaker. And actually, this is maybe I can speak 2 extra minutes on this because this relates to our life. आपको बहुत सी जगह किसी को इंट्रोड्यूस भी कराना होता है इसमें। और तो यहाँ पर तो खैर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया मुझे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी बहुत सी जगह कराना होता है उसमें। तो किसी को, अब उसमें आपने देखा, जब कोई राइटर है, अब आपने जल्दी से गूगल पे गए और बहुत सी किताबों के नाम उसमें आ गए। अब उसमें कुछ किताबें बेचारे की नहीं है, गूगल में तो सजेशन दे देता और किताबों के भी। तो हमारे यहाँ एक बार एक स्पीकर थे, हम देख रहे थे हमारे यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लाउंज में। अब वो धीरे से कह रहे हैं बराबर कंपेरिजन, नहीं नहीं ये किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, नहीं नहीं ये मेरी लिखी हुई, ये कोई दूसरे साहब मेरी लिखी हुई नहीं है। कोई भी ये एम्बेरसमेंट नहीं चाहता है स्पीकर कि आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं और वो किताबें भी आप उसको बता दें जो मतलब उसने नहीं लिखी है। वो बेचारा शर्मिंदा हो रहा है कि नहीं नहीं मैंने नहीं लिखी है उसमें। ये जरूर कह सकता है कि भाई आई विश आई हैड रिटन दिस ऑल्सो, बट आई हैव नॉट रिटन दिस। तो वहां पर भी आपको एक्चुअली जब आप इंफॉर्मेशन कर रहे हैं गूगल, और ये तो देखिए, जब कभी भी मैंने देखा कि कभी अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को ये टास्क दी है कि इंट्रोड्यूस कराने की, तो वो हमेशा स्पीकर ने बाद में शिकायत ही की है थोड़ी सी, क्योंकि वो जल्दी में उन्होंने कोई चीज देखी है। अब उसमें जैसे एक चीज क्या है, अब किसी के ऑथर की किताब है, अब मान लिया अरुंधति रॉय को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें। अब भाई गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपने इंट्रोड्यूस करा दी, लेकिन भाई अगर किसी की कोई रीसेंट किताबें भी हैं तो आपको थोड़ा सा और टाइम देकर उसको देखें कि उसकी कोई रीसेंट चीजें हैं वो भी शामिल हो जाएं। अब किसी का अगर सीवी एक जगह आपने देखा, और सीवी के अलावा भी बहुत सी साइट्स होती हैं जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, so that means there your introduction must be updated also. It is not simply those facts, but it must be updated also. So that means there, in fact checking, this is also something very important. Who has written a book actually, who has written an article, और वो आर्टिकल कब पब्लिश हुआ, किस ईयर में पब्लिश हुआ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और कभी कभी वो फैक्ट्स जो हैं इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक रेफरेंस के लिए कभी कभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी मैं कल एक और जगह बात कर रहा था, तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हम एकेडमिक राइटिंग में रेफरेंसेस आर सो इम्पोर्टेंट। in all our writing which is of academic nature, all our references are so important.
सो इसमें रेफरेंसेस का जैसे एक एग्जांपल दूं, आई वाज रीडिंग अ बुक in Delhi, and I got that book issued from a library in Delhi. उस किताब, that book was published by Oxford University Press. It had number of essays, actually collection of essays, and I was especially interested in two essays. I read both those essays, and I made some points also, and I wrote the titles of those essays. I also wrote the uh, page number. Uh, say whenever I wrote a line, I wrote the page number also, and I wrote all possible details of the book also. Later, when I was citing that in my book, I realized that I missed something very important. Because when you cite an article which is published in a journal, or when you cite an article which is published in an anthology, in a book, so there actually you write the details of writer, editor, title of the article, the page number which is cited, but you also cite complete details of page number. That means at which page does the article begin and at which page does the article end. यानी कि अगर आपने साइट किया है पेज नंबर 17, लेकिन वो आर्टिकल जो है वो 12 से 29 पेज तक है, तो एंड में उस रेफरेंस के एंड में ये भी रेफरेंस आता है कि उसके अंदर पीपी 12 टू 29। अब मैं ये नोट करना भूल गया था। अब सिर्फ इसके लिए ढूंढने लगा, शायद उसका पीडीएफ किताब का मुझे नहीं मिला। हर किताब का नहीं मिलता है, बहुत से पब्लिकेशन हाउसेज ऐसे उनका नहीं मिलता है, ओरियन ब्लैकस्वान का नहीं मिलता है। एनीवे, सो जस्ट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, जस्ट टू गेट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस राइट के पेज नंबर यहाँ से वहां 900 रुपए की वो किताब खरीदी ऑनलाइन और किताब वापस आई। तो ये एक चीज हुई कि आपको केयर करनी है उसके अंदर कि वो सही आए, वो चीज गलत ना आए, कोई पॉइंट आउट कर सकता है उसको। सो दैट मीन्स दिस बिकम एंड सिमिलरली कभी कभी कोई रेफरेंस ऐसा भी होता है उसमें, व्हेन यू आर हंटिंग फॉर रेफरेंस, बिकॉज फॉर यू फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, कभी कभी कोई रेफरेंस ऐसा भी होता है उसके अंदर जिसके लिए यू हैव टू टॉक टू मैनी पीपल, यू हैव टू टॉक टू मैनी पीपल। कभी कभी सारी इंफॉर्मेशन किताबों में नहीं होती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। You must identify some knowledgeable persons also. That means who you understand that, okay, these people can give you some information and that information can be useful. I was working on a write-up which is still not complete. It is to be published in a collection, actually, Orient Brexon is, and this is going to be write-up on long article on Kamala Das. Now, Kamala Das actually is a very interesting Indian poet, English poet. But Kamala Das has also written very famous book, My Story. So actually, I wanted to just ascertain one fact, that how was Kamala Das's My Story received in Hindi and Urdu. That means जो हिंदी के रीडर्स हैं और उर्दू के रीडर्स हैं, वो उन्होंने कमला दास को कितना जानते हैं। अब देखिए, ये तो आपको कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी अगर आप गूगल भी करेंगे कि भाई आप किससे कुछ आप ढूंढेंगे भाई कौन सी चीज छपी है। अब यहाँ पर आपको रेफरेंसेस में अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लेकिन आपको हिंदी के रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। अब लेकिन उर्दू के लिए फिर आपको उर्दू के रेफरेंसेस में वो हमेशा सारे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। यू कैन आस्क सम पीपल। अगर मुझे उर्दू न्यूज़पेपर्स के बारे में जानना है कि भाई कितने लोग कब, जब उनकी डेथ हुई थी तो वो कितने लोगों ने उन पे लिखा था, या क्या क्या चीजें लिखी गई थी, या किताबें जब आई थी, तो इसके लिए तो आपको फिर कुछ ऐसे लोगों से हो सकता है बात करनी पड़े जो उर्दू पेपर्स बहुत जमाने से पढ़ते आए हैं या हिंदी पेपर्स पढ़ते आए हैं, और वो आर्काइव में नहीं मिलेंगे, वो शायद उनकी मेमोरी का हिस्सा होगा,
और वो आप इसीलिए बहुत सा जो रेफरेंस होता है वो ओरल रेफरेंस भी होता है, यानी कि रेफरेंस जो होता है आर्काइवल रेफरेंस होता है, एंड बेसिकली यू ऑल्सो हैव समटाइम्स ओरल टेस्टिमनी ऑफ पीपल। तो वो जो चीजें होती हैं जो ओरल, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू हैव टू टॉक टू सम पीपल। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले एक किताब पे यहाँ डिस्कशन था अलीगढ़ में, उस पर हमारे जो प्रोफेसर इरफान इरफान हबीब साहब हैं, ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई डिड नॉट नो दिस, एंड ये चीजें शायद किताबों में नहीं मिलेंगी, बट somebody who is 93 years old, 93 years old, he has also seen partition, he has also seen independence, 47. So he was talking about that period in Aligarh Muslim University. He said it was happening that many people were actually leaving also. But what was the most important thing was that during that period in 1947, classes continued in the faculty. एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि जो क्लास नहीं हो रहे हो फैकल्टी में, और उन्होंने शिकायत भी की, भाई अब तो मैं देखता हूँ अक्सर क्लासेस खाली होते हैं। So now this is one very important piece of information actually which is not available in the book, but here you can cite the person, one important fact. So I think I took pretty long to discuss the importance of fact checking in writing, and especially when we are talking about facts, authors, their life, their books, their works, for example, their contributions also, what they wrote. और देखिए फैक्ट्स अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग अगर आपको एरिया में बताऊं, वो है बायोग्राफी। और आज की डेट में बायोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली form of writing, very important form of writing. And for a biographer, what is the most important thing actually putting together all those facts, और जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं। एक बहुत बड़े इंग्लिश के राइटर रहे शेक्सपियर, सब जानते हैं आप लोग। अब शेक्सपियर की कम से कम जो बायोग्राफीज जो हैं, मेरे ख्याल से कम वो 400-500 तो जरूर लिखी गई होंगी। अब इतनी बायोग्राफीज जो हैं क्यों लिखी जाएंगी किसी की? वजह ये कि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, a very big part of his life, almost 15 years, from 1580 to 1592 or so. People hardly know anything about, say, those 15 years or so about Shakespeare's life. तो उसकी बेसिस पे इतनी बायोग्राफीज लिखी गई हैं, और उसमें ये भी बहुत सा लिखा गया कि कंजेक्चर कि शेक्सपियर साहब क्या रहे होंगे। जिनने कहा भाई शेक्सपियर साहब वकील रहे होंगे, किसी ने कहा नहीं दुकान पे बैठते थे, वो ऊन बनाते थे, जिनने कहा नहीं शेक्सपियर साहब जो हैं कहीं पर भाग गए थे इधर उधर कहीं। तो अब जितनी उसके अंदर, क्योंकि फैक्ट्स नहीं है, तो बहुत से जो फैक्ट्स हैं फिर धीरे धीरे आपको मिलते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। हालांकि दैट सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल Elizabethan society, was also a society which was a record maintaining society. यानी कि उस वक्त के जो जो चर्च के जो रजिस्टर्स होते थे, किसको मतलब बैप्टाइज किया गया, किसकी बर्थ कब हुई, जो चर्चेज होती थी, पेरिश होते थे वहां पे सब, तो वो जो बायोग्राफर्स के लिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती। शेक्सपियर ने प्रॉपर्टी बहुत खरीदी, वो प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती थी। शेक्सपियर ने मुकदमे भी लोगों पे किए, और पैसा वसूलने के लिए मुकदमे किए। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों ने शक भी किया कि यार इस तरह का आदमी जो लोगों से पैसा वसूल करने के लिए मुकदमा कर रहा है, वो प्ले भी लिखेगा, और कैसे लिखेगा? वो तो मतलब दो अलग अलग तरह के आदमी लग रहे हैं। एक भाई पैसे के लिए लड़ रहा है कि भाई मेरा ही पैसा उसने मार दिया, मुझे मतलब देना पड़ेगा, और वो प्ले भी लिख रहा है। सो दैट मीन्स all those facts had to be ascertained, and that meant that every new biographer actually tried to discover some new facts, tried to actually contradict other facts, and that way you see a whole genre of Shakespeare's biography. So biography becomes so important, and facts become so important in biography. अब हम इसको जरा सा अच्छा देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें, ये चीज सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं है। ये दिस अप्लाइज टू ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस, whether you are writing in Hindi, you are writing in Bengali,
or you are writing in Urdu, that means those facts are especially important. और यहाँ पर खास तौर से क्योंकि मैं हिंदी और उर्दू वालों को ज्यादा जानता हूँ, उसमें बहुत से दोस्त भी हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे, अक्सर उनको ज्यादा बहुत सी चीजें ये करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हिंदी और उर्दू की जो राइटिंग्स होती हैं उसमें अक्सर रेफरेंसेस नहीं होते हैं, बगैर रेफरेंस के भी लिखने लगते हैं। तो बगैर रेफरेंस के राइटिंग जो है एकेडमिक राइटिंग नहीं होती। एकेडमिक राइटिंग मीन्स एक्चुअली writing which is citing also sources, which is citing references. So that means this was uh, a long discussion about fact checking. और कैसे, एक और लास्ट एग्जांपल देकर फिर हम दूसरे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत पहले एक आई रोट एन आर्टिकल इन द गार्डियन। ये गार्डियन एक इंग्लैंड से न्यूज़पेपर निकलता है, बड़ा न्यूज़पेपर है उसमें। और तो उन्होंने जो मुझे उससे सीखने की 2-3 चीजें मिली हैं, और ये सीखने वाली चीजें इसलिए भी हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें आपसे बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी राइटिंग के बारे में मुझे खुद अगर किसी से एडवाइस मिली है, तो कभी कभी वो एडवाइस बहुत छोटी सी होती है, शायद 2 लाइन में वो एडवाइस लिखी जा सकती है, लेकिन उस एडवाइस में, उस सलाह में, उस मशवरे में गहराई बहुत होती है। तो मैं इस तरह के 2-3 एक्सपीरियंसेस जो मेरी खुद की लाइफ के हैं, लेकिन जिसने शायद मेरे लिखने का तरीका बदल दिया, वो मैं आपसे इसमें शेयर करूं। और इसमें से एक यही है फैक्ट चेकिंग। जब गार्डियन को एक राइटअप भेजा, तो उन्होंने ये लिखा कि भाई देखिए, आपने जो है इसमें एक किताब का हवाला दिया है, यू हैव मेंशन्ड ए बुक एंड दैट बुक इज somehow not to be seen anywhere. Google is not taking that view. यानी कि गूगल कहीं हेल्प नहीं कर रहा है। तो देखिए, वहां पर जो एडिटर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्रॉस चेक किया, उन्होंने फैक्ट चेक किया, और उन्होंने मुझे उसमें पकड़ लिया कि भाई ये जो है आपने किताब जो लिखी, किताब का रेफरेंस दिया है, ये गूगल नहीं ले रहा है। नाउ व्हाट टू डू? तो मैंने, खैर मेरे लिए वो चीज आसान थी, क्योंकि वो किताब जो है दैट वाज पब्लिश लोकली फ्रॉम अलीगढ़, दैट वाज रिटन in I think before the coming of the internet. तो उस किताब को ज़ाहिर है गूगल इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उसकी किताब का लोकल पब्लिकेशन था, बिल्कुल लोकल पब्लिकेशन। कुछ कॉपीज छपी होंगी, कुछ लाइब्रेरी में चली हो गई होंगी, और कुछ जो हमारे जो प्रोफेसर मकबूल हसन खान थे, उन्होंने मतलब अपने शायद दोस्तों को दी होंगी। ये उस वक्त की, उस दौर की बात है जब किताबों के लिए उतने पब्लिशर नहीं होते थे। बहुत अच्छी किताब थी वो। आई had an image of that book. I got that book issued from my library, and I clicked a photograph of that book and I sent that to the editor of Guardian. उन्होंने उसको देखा कि नहीं, ये तो किताब है, they became satisfied. फिर उन्होंने उस डिटेल को उसमें शामिल कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं। कुछ किताबें शायद गूगल से पहले की हों, तो शायद गूगल हेल्प ना करे। कुछ किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही लोकली पब्लिश हैं, जिसकी हो सकता है बहुत कम कॉपीज छपी हो, तो उसकी डिटेल्स नहीं हो। लेकिन जब हमने उसको लिख दिया उसके बारे में, तो अब आज की डेट में अगर गार्डियन को कोई भी गूगल करेगा मेरा वो राइटअप, तो वो किताब की डिटेल्स आ जाएंगी, और अब वो पूरी दुनिया उसको किताब की का रेफरेंस जान रही है। लेकिन अगर वो ही हम गलत देते, तो पूरी दुनिया ये भी जानती कि आसिम साहब ने ये गलत रेफरेंस दिया है यहाँ पर। तो वो तो जो चीज एक दफा से छुपी हुई होती, वो जाहिर भी हो जाती, लेकिन यहाँ पे छुपी हुई चीज क्योंकि ठीक थी, तो रेफरेंस भी दिया, क्रॉस चेक के बाद वो ठीक थी। तो दैट मीन इट कट्स बोथ वेज। दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो देयर वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, और उससे ये भी चीजें क्लियर होती हैं कि व्हेन यू आर राइटिंग एक्चुअली यू मस्ट नो योर ऑडियंस। एक इशू आता है कि बहुत से जो यंग राइटर्स हैं, वो कहते हैं भाई हमारा ये लिखा हुआ था, ये रिजेक्ट हो गया, हमने ये आर्टिकल भेजा, ये रिजेक्ट हो गया, और हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, आई रोट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है, या एक और भी चीज है कि हमने ये किताब का प्रपोजल लिखा था,
I wrote the proposal of this book, but this proposal was rejected. तो यहाँ पर हो सकता है इशू ये है कि आपने टिकट तो आपने आगरा का लिया ट्रेन का, और आप बैठ गए जालंधर वाली ट्रेन, जाने वाली ट्रेन में, तो आप आगरा नहीं पहुंचेंगे उसमें आप. सो दैट मीन्स हियर इफ यू हैव रिटन समथिंग, एन एकेडमिक पीस जो भी है, फिर आप ये देखिए कि कौन से जर्नल्स जो हैं जो उस तरह की चीजें छापते हैं, पब्लिश करते हैं, आपको ये सर्च करना है. और फिर आपको यू ट्राई टू जीरो दोज थिंग्स इन एंड ट्राई टू सेंड योर थिंग टू दोज प्लेसेस. इसी तरह से जो रिजेक्शन भी है, जो ऑडियंस को नहीं जानने का भी, इसी तरह से कोई जो राइटअप्स भी है आपका, मान लिया आपको पॉपुलर कहीं प्रेस में लिखना है, कोई न्यूज़पेपर्स हैं या वेबसाइट्स हैं, आज की डेट में वेबसाइट्स बहुत सी हैं, वहां के लिए लिखना है, तो वहां भी आप ये देखिए कि कौन सी जो वेबसाइट है, कौन सा न्यूज पोर्टल है, वो आपकी तरह की चीजों को छापता है नहीं छापता है. एक पर्टिकुलर मान ली न्यूज पोर्टल है दैट इज डिवोटेड टू पॉलिटिकल राइटिंग्स. Suppose you send your literary piece there, they will not show interest in that. So that means there you have to identify also. और इसीलिए जहां आपको जिस चीज को भेजना है, you have to read so many of those pieces there. तो इससे जो कंक्लूजन में एक ड्रॉ करूं इसी से, एक और एक्सपीरियंस था जो उसका बेसिकली जो एक और जो एक्सपीरियंस था जो हमारे लिखने से ही संबंधित है, कि जो गार्डियन से जो मतलब एडवाइस थी, उन्होंने सिर्फ 2 लाइन की एडवाइस थी. उसमें एडवाइस ये थी कि आपने जिस पर्सन के बारे में लिखा है, यू आर एक्सट्रीमली डिफरेंशियल टू दैट पर्सन. दैट मीन्स यू आर शोइंग एक्सेसिव रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन. हमारे यहाँ अक्सर इंडिया में बहुत हम लोग रिस्पेक्ट शो करते हैं, खास तौर से अगर हम अपने गुरु के बारे में कुछ लिखते हैं. और हमारे मेरे बेटे हैं, वो अक्सर कहते थे कि भाई ये पापा, इनका एक साहब को जिनका फोन आता है तो आप एकदम बिस्तर पे बैठे हुए होते हैं, उठ के आप खड़े हो जाते हैं, घबरा जाते हैं. मैंने कहा नहीं, वो हमारे गुरु हैं भाई, उनका फोन आता है उस तरह से हम उठ जाते हैं. You see that similarly when I wrote that, so there also I hope my voice is reaching you. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, हाँ सर, Yes, sir. Yes, सुनाई sir. दे रहा है सर. Okay, thank you. So there actually when I Yes, sir. got that advice, so the editor at Guardian said that you are too differential, too respectful to your subject. And the other advice was that don't use too many adjectives. Let facts speak for themselves. Let facts speak for themselves. अब वहां पर देखिए ये 2 pieces of advice थे. Let facts speak for themselves. Don't use too many adjectives. बहुत मत लिखिए कि भाई जो एक अक्सर ये हमारी अर्चना वहां आगरा से हैं, ये समझ लेंगी इस बात को. अगर उनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, हमारे एक अक्सर प्राची मैडम, आगरा से और प्राची। बरेली से और मेरठ से अंग्रेजी के बहुत सी कुंजियां बहुत छपती थी एक पीरियड में. Yes, तो sir. अंग्रेजी के राइटर है, उस पर छपी होती थी उसमें. तो हमारे एक टीचर थे, सीनियर प्रोफेसर थे, वखार साहब. तो कभी कभी कोई स्टूडेंट की कोई कॉपी आती थी, उस पर ये लिखा हुआ होता था कि शेक्सपियर इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑन द होराइजन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दिस एंड दैट. तो वो कहते थे भाई ये तो आगरा घराने का लग रहा है कुछ. So that means here we often write in that manner. So actually this is not something which is recommended. So there actually the editor at Guardian said let facts speak for themselves. और दूसरी चीज don't be too differential. अब हमने जो गलती उसमें दोबारा की, दूसरा ड्राफ्ट भेजा, तो उसमें उन्होंने कहा भाई अब तो आपने कुछ जरूरत से ज्यादा उसके अंदर आपने इसके अंदर फ्रैंकनेस दिखाई है, उसमें उतना भी नहीं हो.
तो दैट मीन्स गेटिंग द राइट टोन. If that particular column demanded a particular tone, देखिए वहां उनकी प्रॉब्लम मेरी ग्रामर से नहीं थी, मेरी वोकेबलरी से नहीं थी, मेरी ग्रामर से नहीं थी. उनकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई एक तो ड्राफ्ट जो पहला भेजा था उसको बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंशियल थे, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, कि भाई एब्सेंस में भी कान अपना भाई पकड़ के खड़े हो जा रहे थे. और दूसरा ये था कि बहुत फ्रैंक, कि बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गया. तो वहां पर गेटिंग द राइट टोन, तो टोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और एकेडमिक राइटिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी है तो उसमें गेटिंग द राइट टोन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वी शुड नॉट, इट इज सपोज टू बी फॉर्मल ऑल्सो. तो ये तो देखिए एक जो इसमें एडवाइस थी. एक और बहुत अच्छी सी एक ईमेल एक बार आई थी. वो ये था कि एक जो पब्लिकेशन, जो एक पोर्टल है बहुत अच्छी चीजें छापता है, और खैर मैं आपके लिए उनके लिए अब मैं रेगुलरली लिखता हूँ, वह scroll.in. आई होप यू आर फेमिलियर विद scroll.in. बहुत उस पर चीजें आती हैं. तो स्क्रोल को बहुत पहले ऐसा था कि एक आर्टिकल मैंने स्क्रोल को भेजा, बड़ा आर्टिकल था. एंड और वो आर्टिकल जो था उसमें बेसिकली था वो जो बहुत से पाकिस्तानी ड्रामेज होते हैं उस पर था वो. खैर, तो अब ये था कि जब उसको एडिटर ने फौरन ये लिखा कि नहीं, वी कैन नॉट पब्लिश इट. खैर पूछा उनसे कि भाई क्या आप सिर्फ उसी चीज को पब्लिश करते हैं जो आपके स्टाफ लिखता है, योर कॉरेस्पॉन्डेंट्स राइट? तो उनका नहीं, ऐसा नहीं है. एंड द सेंटेंस दैट एक्चुअली फ्रॉम देम, दैट द सेंटेंस वाज, नो वी पब्लिश anyone's write-up, but this write-up actually uses so many difficult terms which our readers won't understand, and in fact I don't understand them either. अब देखिए एडिटर ही कह रहा है कि भाई डायजेटिक वर्ड्स लाइक डायजेटिक. अब जो डायजेटिक वर्ड जो है उसके अंदर हमने यूज किया था, तो डायजेटिक का अगर आपसे देखें तो बड़ा उसका स्पेशलाइज मीनिंग है, जो अंग्रेजी कोई एक ही लेवल पर नहीं होती है. अभी जो किसी का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मान लीजिए लिटरेचर है, और लिटरेचर वाला स्टूडेंट जो है वो यूज करे कि साहब डिकॉन्स्ट्रक्शन और सिम्टोमेटिक रीडिंग और डिस्कर्सिव टेरेन. तो ये वर्ड जो है शायद जिसने दूसरा सब्जेक्ट वाला नहीं समझ पाएगा उसमें. तो उसी तरह से हर सब्जेक्ट की जो है वोकेबलरी अलग होती है, हर सब्जेक्ट की वोकेबलरी अलग होती है. जो कल्चर का मतलब लिटरेचर में है, वो मेडिकल कॉलेज में जब वो लिख रहे हैं कल्चर इसका जो है, तो वो दैट इज अ डिफरेंट मीनिंग. लेकिन एक जनरल ऑडियंस के लिए भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो वहां पर आपको एक बैलेंस अख्तियार करना है, that you are not using too many specialized terms, you are not using jargon, but at the same time you are also expressing yourself properly. तो वहां पर फिर जो उनका ये सेंटेंस था कि आई डोंट, एंड आवर रीडर्स वोंट अंडरस्टैंड वर्ड्स लाइक डायजेटिक, एंड इनफैक्ट आई डोंट आइदर. तो मेरे लिए ये था कि उस पूरे राइटअप को आई ट्राई टू टोन दैट डाउन एंड आई सेंट इट एल्सवेयर. फिर इट वाज पब्लिश एल्सवेयर. तो एक तो चीज ये है कि आपकी कोई भी लिखी हुई चीज जाया नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है, उसका भी टाइम आएगा, और वो टाइम कभी भी आएगा उसमें. लेकिन ये आपको देखना है कि आपका ऑडियंस क्या है. तो ये आपको जो छपने में कभी कभी रिजेक्शन आते हैं, तो उसमें एक तो रीजन ये होता है कि आप ये नहीं जानते हैं कि आपको किसको भेजना था. दूसरा ये है कि उसका जो एक प्रॉपर जो लैंग्वेज है, उसकी टोन जो है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रामर तो सही होगी ही होगी, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें जो एक वर्ड लेंथ है, सारी चीजें वो तो होंगी ही होंगी, रेफरेंसेस होंगे ही होंगे. लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर टोन जो है, या पर्टिकुलर जो उसकी फॉर्म है राइटअप की, अब फॉर्म में ये भी शामिल है कि उसका एक एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं, या उसके अंदर एक प्रॉपर उसका ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है. You need introduction, you need, for example, a proper body, you need some conclusion. In short write-ups, you don't need that conclusion often. So that means all these things become so important. अब ये देखिए, एक ये जो एडवाइस जो है, छोटी सी एक और एडवाइस जो है, जो आज भी मैं याद रखता हूँ. कभी कभी जो हमारे साथ के
लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उनसे भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। आप कोई चीज लिखते हैं, यू शो इट टू देम, बहुत सी चीजें जो आपकी नजर से नहीं गुजरी वो बता देती हैं आपको। हमारी एक सीनियर कलीग थी, अभी उनकी पिछले 3-4 महीने पहले बेचारी की डेथ हो गई, प्रोफेसर सीमी हसन। एक बार बहुत बातचीत करने के बीच में शी सेड, और ये यहाँ पर देखिए बातचीत हो रही है जो बहुत सी चीजें लिखी जाती हैं जो ह्यूमैनिटीज में या सोशल साइंसेज में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइट अप, स्ट्रक्चर। तो शी सेड कि देखो, जो अगर आपके माइंड में बहुत सी चीजें हैं या आपने जो चीजें पढ़ी उसको आप लिख लीजिए। डोंट थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर इन योर फर्स्ट ड्राफ्ट। बाद में स्ट्रक्चर यू कैन टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, यू कैन improve the structure, you can possibly ensure better structure of your write-up. ये बात बहुत सिंपल थी, बट इट वाज वेरी गुड एडवाइस। एंड उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सी जगह व्हेन आई हैड टू राइट और आई एम राइटिंग, I would possibly start writing after I have done the necessary reading and without thinking about a structure. But at the stage of revision, maybe we shift a few paragraphs from one place to another, we remove some paragraph, we possibly add some sentences, we possibly add some references. So that way, gradually, the structure also improves. And this actually happens. So that means here, if you are already thinking about a structure, then possibly you may not even begin. So we are not think. So whatever draft actually, और इसीलिए एक और बहुत अच्छी चीज है कही जाती है राइटिंग के बारे में। अगेन माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज हियर, कि आपके अंदर, लिखने वाले के अंदर दो व्यक्ति होना चाहिए, दो शख्स होना चाहिए लिखने वाले में। देयर मस्ट बी टू पर्सन्स इन यू व्हेन यू आर राइटिंग। एक तो राइटर है और दूसरा एडिटर है। एक राइटर है और एक एडिटर है, और ये दोनों देखिए साथ साथ ना बैठे, ये साथ साथ ना बैठे। अगर दोनों साथ साथ बैठ गए तो फिर इनमें आपस में होगा झगड़ा और आप नहीं लिख पाएंगे। तो पहले तो आप अपने अंदर के राइटर को निकालिए। आपने कुछ लिख रही हैं तो आपने यू read something, you consulted the sources, you felt about something, you thought about something, you jotted down your point, whatever. So write and write. That is the writer in you. That is the writer in you who is doing the writing. लेकिन जो फिर एक बार once the writer has done his or her job, अब राइटर से कहिए आप जो हैं अपने सोफे पे बैठ के आप चाय पीजिए, सिगार पीजिए, चलाइए, कुछ भी कीजिए। राइटर अक्सर सिगार पीते हुए नजर आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिया। अच्छी चीज नहीं है सिगार पीना। सो राइटर इज, अब आपसे कहिए कि साहब एडिटर साहब जो हैं वो तशरीफ लाए यहाँ पर। एडिटर के हाथ में हमेशा एक कैंची होती है, आपने देखा होगा, वो उसका एक सिंबल है। बहुत सी चीजों के कुछ सिंबल्स होते हैं। तो एडिटर जाना जाता है अपनी पेंसिल के लिए, अपनी कैंची के लिए। उसमें फिल्मों में अक्सर वो काटता है, और इसमें जो है लिखने की दुनिया में एडिटर जो है वो होता है पेंसिल का इस्तेमाल करता है या रेड पेन। तो एडिटर जो है वो बेसिकली उस चीज को दोबारा पढ़ता है, बहुत गौर से पढ़ता है। ये देखता है कि कहाँ पर पैराग्राफ्स हमें ऐड करने हैं, कहाँ पर हमें किसी पॉइंट को फर्दर इलस्ट्रेट करना है, वेयर वी हैव टू एक्चुअली ऐड न्यू इंफॉर्मेशन, वेयर वी हैव टू ऐड अ reference is missing, and where we see that the introduction can be made better. और ये एडिटर देखिए राइटिंग की शक्ल बदल देता है। अभी कुछ दिनों पहले एक किताब आई थी रामचंद्र गुहा की। रामचंद्र गुहा को आप लोग जानते होंगे, बहुत मशहूर राइटर हैं। Yes, Yes, sir. Yes, sir. जी Yes, sir. Yes, तो sir. जी रामचंद्र गुहा ने ये किताब लिखी है एक्चुअली। Yes, sir. उनके और रुकुन अडवाणी जो हैं बहुत मशहूर एडिटर रहे हैं। रुकुन अडवाणी, आपने नाम शायद उनका सुना है, नहीं सुना है? रुकुन अडवाणी का, अडवाणी जी से कोई ताल्लुक नहीं है उनका,
एक चीज ये नहीं मतलब सर, नहीं दी है। सुना सर। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी से कोई उनसे ताल्लुक नहीं है रुकुन अडवाणी का, बल्कि ये जो रुकुन अडवाणी बहुत मशहूर जो है एडिटर रहे हैं, और एक्चुअली कुछ बहुत मशहूर एडिटर रहे हैं, जैसे रवि दयाल हिंदुस्तान के बहुत मशहूर एडिटर रहे हैं। तो रुकुन अडवाणी बेसिकली उनका और जो ये जो है आपके रामचंद्र गुहा, उनका जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, जो लेटर्स थे, जो ईमेल्स थे, ये पूरी किताब उस पर बेस्ड है, यानी कि एक राइटर की जो रिलेशनशिप है एडिटर से। और बहुत से केसेस में एडिटर के बारे में, बल्कि मैं कुछ दिनों पहले एक राइटअप पढ़ रहा था रवि दयाल के बारे में, जो बहुत मशहूर एडिटर हैं। उनका ये कहना था कि देखिए, एडिटर जो है वो कभी लाइमलाइट नहीं सीख करता है। बहुत सी किताबें जो आप पढ़ते हैं उसके पीछे जो एडिटिंग होती है, एडिटर बेचारा लाइमलाइट में नहीं होता है, वो तो मतलब जो है किताब को इम्प्रूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम आपके अंदर के एडिटर की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिटर हु इज इनसाइड यू, दैट मीन्स द राइटर एंड द एडिटर। वो जो फॉर्मल एडिटर आएगा बाद में आएगा, लेकिन आपके अंदर का जो एडिटर है, जो आपने लिखा है, उसको बहुत थारूली वो एडिट करेगा। और ये चीज साइंस की राइटिंग में भी है कि एडिटर जो है वो बहुत बारीकी से पढ़ेगा, और कभी कभी फौरन नहीं पढ़िए, एडिटर को थोड़ा सा, एक बार जब राइटिंग जो है थोड़ा सा टाइम हो जाए, तब दोबारा इफ यू सी दैट थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम, मे बी 15 days later, देन यू कैन सी पॉसिबली सर्टेन थिंग अफ्रेश। तो वो एडिटर उस चीज को देखता है। एक आपको एक राइटर का एग्जाम्पल दूं मैं, ये मैं किताब पढ़ रहा था कि जब कोई चीज छपती है, तो ये जो राइटर हैं इनको कहना था कि बहुत एंजाइटी होती है मुझे, जब कोई चीज छप के आने वाली होती है। ये चीज मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी भी अभी एक बुक आने वाली है, और मुझे उसका एक्साइटमेंट इतना नहीं है, मुझे उसकी एंजाइटी महसूस होती है उसमें कि भाई हाउ विल इट बी रिसीव्ड। एंजाइटी ज्यादा है, यानी फिक्र ज्यादा है, एक्साइटमेंट कम है। एक्साइटमेंट लिखते वक्त होता है। तो यहाँ पर जो एडिटर साहब, जो राइटर साहब हैं, उनका कहना था जब कोई उनकी कोई चीज छपती थी, छप के आती थी, तो वो उनकी वाइफ पहले उस चीज को पढ़ती थी, और वाइफ उसको पढ़ने के बाद, ये दूर बैठे होते थे, उसको वाइफ उसको पढ़ने के बाद हाथ उठा के कहती थी ऑल क्लियर, सब चीज ठीक है। तब फिर ये पढ़ते थे कि भाई ना, सब चीजें ठीक है, उसमें कोई उसमें गलती नहीं रह गई, कमी नहीं रह गई ये उसमें। तो ये तो देखिए जाहिर उन्होंने उससे पहले बहुत थॉरो एडिटिंग की होगी, तो ये हमेशा वरी रहती है कहीं कोई चीज छूट ना गई हो छपने के बाद उसमें। और इसमें आपको सच बताऊं, कभी कभी ऐसी चीजें रहती हैं कि वो, एक मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताऊं, ये शायद 4-5 साल पहले की बात है। अभी 17 अक्टूबर आने वाला है, 17 अक्टूबर को हमारी यूनिवर्सिटी में फाउंडर्स डे होता है, यानी कि सर सैयद अहमद खान की बर्थडे। तो मैंने एक सर सैयद की जो एक पर्टिकुलर बर्थडे के मौके पर एक आर्टिकल भेजा था। एक वो न्यूज़पेपर ने छापा, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का भाई वो, हिंदू। अब उसमें उन्होंने क्या किया, मैंने लिखा था 205वीं बर्थडे, उन्होंने उसको साहब जो है 225वीं कहाँ से कर दिया। गलती मेरी गलती नहीं थी, ये वहां उनकी गलती थी। अब ये जो गलती हुई उसमें, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत आपने गलत कर दिया भाई, ये तो मतलब एक तो जो पढ़ेगा कोई प्रिंट का एडिशन जो है, कहेगा भाई यहीं से है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सर सैयद पे और भी कोई चीज लिखी है, और इनको मतलब इतना तमीज नहीं है कि भाई अभी तो मतलब उसमें उतने साल हुए भी नहीं और ये इतनी गलती कर रहे हैं उसमें। खैर उनको ईमेल बाद में लिखा छपने के बाद, तो अब वो ऑनलाइन वर्जन में उन्होंने इसको ठीक कर दिया, लेकिन प्रिंट वर्जन की खैर अपनी एक 1-2 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है उसमें, तो कोई शायद ढूंढ नहीं पाएगा जल्दी उसको। लेकिन यहाँ पर क्या था, उसमें अगर वही गलती रह जाएगी उसमें, तो वो रह जाएगी उसमें। कभी कभी इवन ऑनलाइन में भी जो अवेलेबल चीजें होती हैं, उसमें भी वो आप लिख भी दीजिए उनको कि आपकी गलती कभी कभी नहीं होती है, वो एडिटर कोई गलती कर सकता है इसमें, ट्रांसफर में कर सकता है गलती। वो जो कभी जो आपकी वो जो
आपका होता ऑटो करेक्ट जो है उसमें होता है। पर लेकिन ये कि ऑनलाइन वर्जन में किसी भी चीज के करेक्शन की गुंजाइश रहती है, लेकिन कभी कभी एडिटर्स नहीं करते हैं, उतना टाइम ही नहीं देते, सोचते ठीक है भाई उसमें। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट आल्सो, दैट structure for example, and the editor in you comes into picture when you actually have already presented the writer. So writer and editor, they should not come together. First the writer should come, and then the writer should stay in the background, and the editor should come, and the editor should do a very thorough job on writing. ये तो देखिए राइटिंग के बारे में चीज आती है। सो अभी तक हम बातचीत करते हुए, वी आर हैविंग कन्वर्सेशन, हमने बहुत सी बातें की हैं उसमें। वी टॉक्ड अबाउट काइंड्स ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग सिर्फ एक नहीं होती, बल्कि देर आर, अब एक नया वर्ड हम सीख लेते हैं, देर आर जॉनरास ऑफ राइटिंग। जॉनरास, GENRES, देर आर जॉनरास ऑफ राइटिंग। यानी कि राइटिंग के प्रकार होते हैं, राइटिंग के बहुत सी किस्में होती हैं, और एक किस्म उसमें एकेडमिक पेपर भी होता है। लेकिन राइटिंग तो कभी कभी हम और भी करते हैं, हमें किसी मीटिंग के मिनट्स लिखना है तो मिनट्स की किस्म अलग है, हमें कभी कभी कहीं किसी का कंडोलेंस नोट लिखना है वो अलग है, हमें कोई एक नोटिस ड्राफ्ट करना है वो राइटिंग की फॉर्म अलग है। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अकेजन क्या है लिखने का, और उसी हिसाब से राइटिंग होगी। तो ये तो ठीक है, सारी चीजें इसमें आई इसमें। दैट मीन्स देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग, देर आर डिफरेंट जॉनर्स ऑफ राइटिंग, and then we identified three very important categories of writing. One was take into account feeling and sentiments, so poetry is basically that kind of writing. Another was report writing, where you write different kinds of reports, and that writing is based on facts. And there we also talked about importance of facts in all kinds of writing. In between there is the writing which is based on argument. All academic writing actually is making an argument. Your PhD thesis is making an argument. Your PhD thesis, for example, when you write a PhD thesis, so that argument actually is sometimes made in just a few sentences, maybe a short sentence, or maybe just two sentences. But that argument, there are other words also for that argument. हम उसको ही कहते हैं आपकी थीसिस क्या है। जब PhD का कोई वाइवा होता है तो कैंडिडेट से एग्जामिनर यही पूछता है कि भाई आपकी थीसिस इसमें क्या है, यानी कि आपका आर्गुमेंट इसमें क्या है, आपका इसके अंदर क्या मेन आपकी जो सोच है, और वो 2 लाइनों में बता देनी चाहिए, फिर उन 2 लाइनों को एक्सपेंड किया जाता है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू मस्ट नो व्हाट इज योर आर्गुमेंट, you must know your argument, and that argument should be summed up in 2 sentences. And often that argument also comes into picture in maybe at the very beginning of the book. In the morning actually I was reading a book, and if I just show you this book, for example, this book is titled Modernity, Print and Sahitya. And here early in the book the writer actually makes an argument, and he makes it very clear what argument he is making. So that means you must know actually what is your argument. I'll just read maybe just for example a sentence or two. This suggests that what is the argument here that the writer is making. I propose therefore to collocate the from the foregoing I propose therefore to collocate the 3 concurrent developments of modernity, print and Sahitya, to investigate the role played by them. In this book, I trace the growth and development of a recognizably new literary culture in colonial Odisha in 3 broad but overlapping temporal segments. Just one sentence. In this book, I'm reading this again. In this book, I trace the growth and development of a recognizably new literary culture in colonial Odisha in 3 broad but overlapping temporal segments. यानी इस किताब में मैंने जो न्यू
लिटरेरी कल्चर था उड़ीसा में, उसकी जो इर्तिका है, उसकी जो उन्नति है और उसकी जो ग्रोथ है, उसको ट्रेस किया है 3 अलग-अलग हिस्सों में। अब ये देखिए बहुत सिंपल ढंग से ये आर्गुमेंट है इसमें। अब ये इसी तरह से जो आर्गुमेंट्स होते हैं किताब में या थीसिस में, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब वो 2 लाइन में आर्गुमेंट आ सकता है। इसके अलावा भी देखिए बहुत सी चीजें और कहने की हैं, जैसे कभी-कभी कोई आप किताब मान लिए लिख रहे हैं या आप आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें या थीसिस है, तो उसमें ये भी सवाल होता है कि इंट्रोडक्शन आप कब लिखते हैं। तो अक्सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप इंट्रोडक्शन बाद में लिखें या खासा पोर्शन लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन कभी-कभी जो आपका और टेक्स्ट होता है, उसके हिसाब से फिर आपका इंट्रोडक्शन भी शेप हो सकता है फिर से। बहुत से और भी राइटिंग के बारे में पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर सकता था कि आप सोर्सेस को कैसे यूज करते हैं, जो बहुत से सोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेस की ऑथेंटिसिटी को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप सोर्सेस को यूज कर रहे हैं कि हाउ ऑथेंटिक आर दो सोर्सेस। आज की डेट में हम एक ऐसे दुनिया में भी रह रहे हैं जहां पर बहुत ही फेक न्यूज या डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या डेलिब्रेट डिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सोर्सेस को कैसे यूज कर रहे हैं, उनकी रिलायबिलिटी को हम कैसे जज कर रहे हैं। फिर जब हम व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वी आल्सो सी दैट हाउ टू बिगिन। हम कैसे शुरुआत करते हैं, कोई अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो हाउ टू बिगिन, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बिगिनिंग राइट अप। इसी तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई जो एक राइटर है, और यहाँ पर हम समअप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक राइटर है बेसिकली उसके अंदर जो एक तरह से वो एक जैसे प्लम्बर के पास में एक कई चीजें होती हैं, तो राइटर के पास में भी जैसे अगर हम उसको देखें उसके हथियार क्या हैं, तो उसका एक तो हथियार है उसकी वोकेबलरी, उसके पास जो अल्फाज का जखीरा है, जो उसके पास शब्द हैं उसके पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। उनका भी एक जो सॉन्ग राइटर है, फिल्मों में जो लिखता है, फिल्में हर तरह की होती, तो उसकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज्यादा उसकी वास्ट होनी चाहिए। अ सॉन्ग राइटर मस्ट हैव अ वास्ट वोकेबलरी। So here vocabulary actually is a very important tool for any writer. Second is grammar, that grasp of grammar. And the third is, for example, different elements of style. Different elements of style. और इसमें क्या चीजें आती हैं, एक चीज तो मैंने डिस्कस की थी, जिस टोन जो है, लेकिन और चीजें भी आती हैं कि उसके अंदर कि भाई कैसे हम पॉजेसिव बनाते हैं, या सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, या हम पैराग्राफ में कैसे राइटिंग को डिवाइड करते हैं। ये सारी चीजें राइटिंग में बेसिकली आ जाती हैं। अब और अगर हम देखें उसके अंदर चीजें बहुत सी डिस्कस करने की हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात इसलिए खत्म करता हूँ कि आप आखिरी सेंटेंस ये है कि अगर आपको लिखना है तो लिखिए। जिसको भी तैरना सीखना है, तैराकी सीखना है, तो उसको पानी से नहीं डरना है, उसको पानी में कूदना है। इसी तरह से लिखना जिसको है तो उसको गलती से नहीं डरना है, बल्कि लिखना है। लिखिए, माय बेस्ट विशेस फॉर यू। यहाँ पर अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सी बातें और कही जा सकती हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आप Thank you, sir. क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, जो है कोई वरी हो या ऑब्जर्वेशन कुछ हो, मैं टाइम दे रहा हूँ उसमें। आप कुछ Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Thank you, Can sir. can I? यस Hello. आलिया, फर्स्ट Yes, sir. फर्स्ट Sir. ऑफ ऑल जो देखिए जो भी सवाल पूछे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराए कि वो कहाँ पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, Okay, ताकि sir. दूसरे पार्टिसिपेंट भी जानेंगे, अच्छा लगेगा उनको। जी था, यस आलिया। Sir, my name is Alia Tazeen, and I am working at the Murshidabad Center of AMU in the Education Department. Yes, Sir, Alia, I go ahead. wanted to. जी.
सर मुझे बस एक चीज डिस्कस करनी है, मे बी यू विल बी एबल टू हेल्प मी इन दिस, कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी सोचते हैं काम करने का, और उससे पहले चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स या कंटेंट को रेफर करते हैं, तो सर ये एक कंफ्यूजन मेरे माइंड में हमेशा ये आता है कि जो मैं सोच रही हूँ ये तो औरों ने बहुत अच्छे से लिख रखा है, तो वहां पर क्या करूं? कोई भी डायरेक्शन जब हम सोचते हैं तो ऑलरेडी उस पे देखते हैं लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है, और वर्क भी है, उनकी लैंग्वेज, उनकी वोकैबलरी भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि फिर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा और मैं इसमें अलग कैसे कैसे प्रोसीड करूं, तो वो आपका समझ में सवाल नहीं बहुत आता। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका मैं जवाब भी देना पसंद करूंगा उसमें। देखिए आलिया, जी सर। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, एंड आई अस्यूम ये जितने लोग यहाँ पर हैं शायद सबकी वो प्रॉब्लम होगी। मेरी भी प्रॉब्लम है ये, ठीक है उसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज होती है कि कभी कभी जब आप कोई चीज सोचती हैं, लिखती हैं उसमें, और जब आप देखती हैं और ने उसमें है, तो वहां पर कुछ न आप अपने पहली चीज तो जो थॉट्स हैं आप उसको जरूर लिख लीजिए, लिख लीजिए। और जब आप लिखने पे आएंगी तो उसमें किसी दूसरे ने अगर लिखा है तो उसका आप रेफरेंस भी देते हुए आगे चलेंगी, उसको आप एक्नॉलेज भी करते हुए आगे चलेंगी। लेकिन अगर बिल्कुल। कोई छोटी सी भी कोई एक चीज ऐसी होती है जो आपका व्यू है, जो आपको लगता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से दूसरी जगह से ये बात कर रही हैं, तो एक ये वैलिड जी सर। रीजन है लिखने के लिए। आप अगर देखेंगे कोई एक सब्जेक्ट अगर आप चुनिएगा, कोई एक पर्टिकुलर थीम देखिएगा, तो आप देखेंगे उस पे जी सर। किसी एक आदमी ने नहीं लिखा है, उसी चीज पर भी बहुत लोगों ने लिखा है। मैं बिल्कुल। आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत पहले की बात है, ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं अपनी पीएचडी लिख रहा था, और पीएचडी हमारी मार्क ट्वेन पर थी उसमें। तो उसमें उस टाइम बहुत सी जो किताबें या बहुत सी जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे मार्क ट्वेन पर, तो मैं देख रहा था उसमें से कम 100 तो मैं कह सकता हूँ जिन्होंने वही एक पैसेज जो है कोट किया था मार्क ट्वेन की हकलबरी फिन से। अब ये नहीं कि अब उसमें यह है कि ठीक है बाकी लोग लिख रहे हैं उसमें, तो कभी कभी जब आप अपनी बात जो कह रहे हैं तो वो भी थोड़ी सी भी कोई चीज उसके अंदर डिफरेंट है जो आपके पर्सपेक्टिव से है, तो वो दैट इज ए वैलिड रीजन फॉर राइटिंग। ओके और सर। इसमें एक और भी वर्ड मैं यूज करूं इसमें, अ, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग बेसिकली बिल्ड्स ऑन राइटिंग विच इज डन बाय अदर्स आल्सो। तो यहाँ पर जो एक तरह से ये होता है कि एक चीज कहलाती है क्रिएटिव एग्रीमेंट, और एक चीज होती है क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट। यानी कि सिर्फ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं, बल्कि दैट इज क्रिएटिव एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। किसी ने कोई बात जो है कही है यूनिवर्सिटी के बारे में, मान लीजिए कोई राइटअप लिखा है यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में, और सारी चीजें आपको लग रहा सही हैं, लेकिन उसने वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीजें लिखी हैं, तो आपका वो क्रिएटिव एग्रीमेंट होगा। आप कहेंगे बोले इनकी मैं जो फाइंडिंग्स को मैं और एक्सटेंड करके ये कहना चाहूंगा कि ये बात तो अलीगढ़ के बारे में भी सही है, और ये बात जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में भी सही है, तो मैं मतलब वहां की एग्जाम्पल देके बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये देखिए एक तरह का क्रिएटिव एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर, और बहुत सी जगह क्रिएटिव एग्रीमेंट पॉसिबल होता है। और एक और भी चीज उसमें यह है कि जब कभी भी आप कोई चीज पढ़ रही हैं अराउंड दैट सब्जेक्ट, तो उस वक्त आप अपने वो थॉट्स लिख जरूर लीजिए वो, वरना आपने अगर नहीं लिखे तो वो पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखने का, आपके पॉइंट्स का जो है उसमें, और आपको कुछ ना कुछ नया जरूर कहने का मौका मिलेगा उसमें, क्योंकि इंटायर एकेडमिक राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। जहां पर कुछ लोगों ने कोई बात कही, कुछ लोग एक पार्टी जैसे हो रही है, इसका सीन ऐसा है इसमें कि एक जैसे एक पार्टी चल रही है, पार्टी में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, फिर आप शामिल हुए उसमें, आपने भी थोड़ी बहुत अपनी बात कही, फिर आप चली गई, फिर कोई दूसरा उसमें शामिल हुआ, तो ये पार्टी में सभी लोग उसमें शरीक हो सकते हैं उसमें। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. गुड आफ्टरनून सर। जी सर, अर्चना, अर्चना। हाँ सर, माई सेल्फ अर्चना, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दास पीजी कॉलेज बदायूं में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आलिया मैम आपका ने जो क्वेश्चन पूछा व्हाट वही सब्जेक्ट? सेम क्वेश्चन मेरा था सर, एजुकेशन। ओके, गुड गुड गुड।
सर आलिया मैम ने जो क्वेश्चन पूछा सेम क्वेश्चन मेरा था, तो मुझे वहां से तो आंसर मिल गया। एक साथ सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे सर जब लिखने के लिए बैठते हैं तो जो आर्टिकुलेशन होता है सर उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, आर्टिकुलेशन बहुत प्रॉपर अच्छा नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि हमने आज जैसे आपने बोला कि आप तुरंत मत उसको पढ़िए, एडिट करिए, कुछ दिनों बाद एडिट करिए। तो सर जैसे आज हमने कुछ लिखा और वही चीज हम जब 10 दिन या 15 दिन के बाद पढ़ते हैं तो वो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हमें उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो एंड वहीं पे आधे पे ही वो काम रुका रहता है। तो सर इस प्रॉब्लम से कैसे कम की जा सकती है इसको? देखिए ये भी देखिए सिर्फ अर्चना, दिस इज नॉट योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये सारे राइटर्स की प्रॉब्लम है, इसमें सब लिखने वालों की। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल सा जवाब इसका ये है कि आप जो भी चीज आपने जैसे लिखी है, तो अक्सर जो रिवीजन जो होता है वो पूरी राइटिंग की शक्ल बदल देता है, रिवीजन। और आप अगर अपना फर्स्ट ड्राफ्ट देखेंगे, उसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हु गेट एवरीथिंग राइट इन द फर्स्ट ड्राफ्ट। नहीं, ऐसा होता है, यूजुअली नहीं होता। इसीलिए राइटिंग में रिवीजन का बहुत रोल होता है। रिवीजन, अगर हम इस वर्ड को देखें, इसको ब्रेक करें, रीविजन, किसी चीज को दोबारा देखना, री एंड विजन यानी कि सीइंग समथिंग अगेन। तो रिवीजन जो है, और आपको कुछ बड़े राइटर्स, F.R. लीविस बहुत बड़े क्रिटिक थे, बहुत बड़े, अंग्रेजी के मतलब डॉयन, बिल्कुल 20th सेंचुरी के। उनकी कभी कभी जो एक ड्राफ्ट जो है वो कई ड्राफ्ट जो है उसमें लिखा हुआ पेन से, तो राइटिंग बदल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक चीज एक बार मुझे लिखनी थी और वो कॉलम जो है वो सिर्फ 400 वर्ड्स ही अलाउ कर रहा था। 400 वर्ड्स, अप्रोक्सीमेट 400 वर्ड्स, यानी कि 4-5 वर्ड इधर उधर, कुछ नहीं उसमें। अब मैंने जो टेक्स्ट लिखा वो अच्छा खासा ढंग का टेक्स्ट था, वो करीब आई रोट अबाउट 700 वर्ड्स। फिर उसको आई ब्रॉट इट डाउन टू 400 वर्ड्स, और बिलीव मी, मैं एक सेंटेंस को देखता गया कि इसमें क्या इस सेंटेंस के बगैर काम चल सकता है और बात आ सकती है, वो होता चला गया। फिर हमारे एक सीनियर कलीग थे, वो एक अपने टीचर का एग्जाम्पल देते थे। वो हैदराबाद में थे उनके टीचर, मुझे कि वो ये कहते थे क्लास में आकर उनका, भाई आप एक जो है 1000 वर्ड्स का एक आप ऐसे लिखिए, और जब आप जो है 667 वर्ड पे पहुंचे तो उसको आप गोला बनाइएगा। 667 वर्ड पे गोला बनाइएगा। खैर ये पूरा करते थे, उसमें गोला बनाते थे। अब सबके माइंड में ये था स्टूडेंट के कि ये 667वां नंबर क्या है, कौन सा जादू है, कौन सा मंत्र है, क्या बात है। आपके माइंड में भी सवाल आया होगा कि भाई 667वां नंबर क्या है, और सर कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं आप जो है। तो बाद में इन्होंने उनसे पूछा कि सर ये तो ठीक है, आपने 1000 वर्ड्स का बता दिया, लेकिन ये 667 वर्ड का क्या किस्सा है। उनका भी 667 वर्ड का ये था कि वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको ये अवेयरनेस हो कि ये 1000 वर्ड्स आप लिख रहे हैं, आपको कितने वर्ड जाया करने हैं, कितने वर्ड जाया नहीं कर रहे हैं, और कैसे आपको वर्ड लिमिट के अराउंड लिखना है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखिए ये होता है कि स्टूडेंट्स के नंबर काटे जाते हैं ज्यादा लिखने पर या कम लिखने पर। तो दैट मीन्स दैट प्रिसिजन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ये चीज जो है अर्चना, रिवीजन उसमें, और दूसरी चीज है कि आप अपने माइंड में एक डाउट क्रिएट कीजिए कि जैसे कोई वर्ड है, बहुत ज्यादा भी मत कीजिए, इतना डाउट भी ना हो कि कुछ ना लिख पाए, लेकिन कुछ आपने वर्ड जो लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है, तो आपको लग रहा है कि ये शायद इससे बेटर ये है, इसका सिनोनिम है या दूसरा हो सकता है, तो वो आज आप पढ़ेंगी, उसको डिक्शनरी कंसल्ट करेंगी या कोई चीज है, तो आपको उसमें डेफिनेटली रिवीजन। और रिवीजन से तो आप कभी अपने खुद की कोई राइटिंग देखिए, पहला ड्राफ्ट देखिए, उसको सेव कर लीजिए, और बाद में फाइनल देखिएगा तो उसका ड्राफ्ट जो है आपको वो डिफरेंट मिलेगा। और दूसरी बात ये जो आपने कही, जो आपको पढ़ते वक्त अच्छा नहीं लगता है, उसको मैं ये कहूँ कि देखिए ये मैं भी जैसे लिख रहा हूँ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मैं वही चीज जो है 2 साल बाद पढ़ता हूँ, 3 साल बाद जो है, तो मुझे क्योंकि ये लगता है कि मैं तो इस वक्त बिल्कुल नहीं ऐसा लिख सकता, ये मैंने कैसे लिख लिया। तो ये वो चीज बाद में आपको अच्छी लगेगी। एक बार वंस यू आर सेटिस्फाइड कि आपने ये चीज अपनी पूरी ईमानदारी से लिखी है, तो लेटर यू विल बी हैप्पी। कभी कभी जैसे अपनी पुरानी चीज जो है पढ़ के आपको अच्छा भी लगता है कि मैंने कैसे लिखा था।
तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जैसे सर माई सेल्फ शैलेश कुमार प्रजापति, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, SBM PG कॉलेज फाजिलनगर कुशीनगर। मेरा क्वेश्चन था सर कि जो भी थेसिस लिखी जाती है तो क्या उसका एक कोई स्टैंडर्ड साइज होता है क्या सर? जैसे कुछ लोग कई 100 पेज में लिख देते हैं, कुछ कम, तो क्या इसमें हमें जो मेन जो चीजें हैं क्रक्स देखना है कि कितनी सुसंगठित भाषा इस्तेमाल किया गया है, कितने कम शब्दों में चीजों को बयां किया गया है, या बस उसका एक्सटेंशन देखना है? देखिए, जहां तक इसका लेंथ का संबंध है तो थीसिस की जाहिर है एक रिस्पेक्टेबल लेंथ तो होती है। उसको आप, मैंने थीसिस ऐसी भी देखी हैं जो 400 पेज में, 450 पेज में लिखी हुई हैं, और ऐसी भी देखी हैं जो बहुत कम 120-25 पेज में। तो ये मान के चलिए जो आपकी जो PhD की जो मतलब थीसिस होती है उसमें अगर, तो उसमें अगर टाइप होती है उसमें और एक साइड टाइप हो रही है उसमें, तो मतलब ये अराउंड 200 और 250, ये तो मतलब मान के चलिए उसमें। और इसको अगर हम इस तरह से, लेकिन ये कि वो उसका फिर फॉन्ट पे भी डिपेंड करता है, यूजुअली क्या फॉन्ट है उसमें जी जी यहाँ उसमें। और बुक्स में तो ये बहुत क्लियर है कि भाई कुछ किताबें जो हैं वो 2 लाख वर्ड्स की भी हो सकती हैं, कुछ किताबें, शॉर्ट किताबें 60,000 वर्ड्स की भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे मान के चले कि कभी कभी जो एक PhD जो है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है उसमें, तो एक रिस्पेक्टेबल लेंथ मेरे ख्याल से कम वही PhD थीसिस बाद में किताब भी बनती है, तो ये मान के चलिए मैं ये कहूंगा कि अराउंड 70,000 वर्ड्स तो कम से कम होना चाहिए। अब लेकिन ये कि वो तो दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ स्टाइल के कि उसमें आपने क्या लिखा है, वो तो जी वो तो आप ही जानते हैं कि सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर कंटेंट उसकी इंपॉर्टेंट है। तो वो एक प्रॉपर कंटेंट जो है अराउंड 70,000 वर्ड्स में कम से कम आए, मतलब उसमें ये भी जरूरी है कि प्रॉपर कंटेंट हो उसमें। और इसमें थोड़ा सा ये भी है कि जो आप, क्योंकि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटी भी देखना है, कभी कभी आपकी थीसिस बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन एग्जामिनर्स जो हैं वो सारी थीसिस आपकी पूरी शायद नहीं पढ़ते हैं, तो वो पेज नंबर देख के ही बिदक गए, कोई कह रहे इतना आपने इतनी छोटी सी लिख दी कैसे, मतलब PhD उसमें। तो हो सकता है आपने बहुत अच्छी लिखी हो, मतलब वो जैसे जो बिहारी का दोहा है उसमें जो है, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, गाँव घाव करें गंभीर, तो बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन वो तो पढ़ने पे पता चलेगा। तो एक रिस्पेक्टेबल लेंथ रखिए मिडिल में। मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई, अब 2 टाइम उसका हो गया इसमें थोड़ा सा। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग सामने होते, ऑनलाइन लेक्चर नहीं होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। और वैसे मेरे बहुत से लेक्चर्स जो हैं, अगर जिनमें से जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक लिटरेरी थ्योरी से है या खासतौर से सोशल थ्योरी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज के स्टूडेंट, तो मेरे यूट्यूब पर वो बहुत से लेक्चर्स बहुत से मौजूद हैं, तो आप कभी भी सुन सकते हैं, उसमें फ्री हैं इन सारे सब्जेक्ट पे, डिकॉन्स्ट्रक्शन, फेमिनिस्ट थ्योरी और न्यू हिस्टोरिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इन सब पर जो है वो आप यूट्यूब पर आप से फ्री हैं। वो क्लासरूम टॉक्स थी कोविड के पीरियड की, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि दे वर फेयरली स्ट्रक्चर्ड, so I put them on YouTube also, which are available. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत चीजें सीखे हैं। Thank you, sir. धन्यवाद Thank you, sir. May I ask you a question, sir? सर ने एग्जिट कर दिया है। Session is over. आप जल्दी से पूछ लीजिए क्योंकि मैं इससे पहले एग्जिट करूंगा, आपकी जो है जल्दी से बात कर लेंगे। जी Thank you बताइए। so much, sir. Thank you so much, sir. Sir, जब sir, I am Divakar Singh from Sanjay Gandhi PG College, Chowkia, Sultanpur, and the subject of my subject is English literature. Sir, when we were attending our PDP programs in University of Allahabad, so one of my our professors told us that reduce
your language to bare minimum while writing a thesis. So sir, क्या यही चीजें आप जब पेपर लिखते हैं तो में भी वही होती है? क्योंकि थीसिस में तो हो गई सर, जब आप आगे चल के पेपर्स लिखते हैं तो लैंग्वेज किस तरह से उसमें आप किस तरह से लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपके प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है उसमें। और उसमें ये कि बेसिकली जो है, जो बहुत सा मटेरियल रिडंडेंट है, सर बहुत सी चीजें जो जो उसका पार्ट नहीं है, उसमें सिर्फ पैडिंग है उसमें, तो जाहिर है वो कोई चीज जोड़ती नहीं है उसमें। तो राइटिंग में प्रिसीजन प्रिसीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें उसमें। तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। और ये आपके इसमें भी, एकेडमिक राइटअप में भी वही चीज शामिल है उसमें, कि जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें, यानी कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपने इलस्ट्रेट कर रहे हैं वो तो ठीक है उसमें, लेकिन उन्होंने ये बात सही कि उनका मतलब ये है कि जो बहुत सी चीजें बिल्कुल अननेसेसरी हैं, जिसका कोई जो चीज नहीं कर रही हैं, अननेसेसरी हैं, और वो मेन बॉडी में तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी जो किताब या आर्टिकल में हम नोट्स का यूज करते हैं, नोट्स एंड रेफरेंसेस, नोट्स में हम वो चीजें लाते हैं जो आपके मेन चैप्टर का या मेन उसका पार्ट आर्गुमेंट का नहीं होती, बट स्टिल दैट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी और यूजफुल। ये है इसमें। आपके प्रोफेसर साहब कौन साहब थे? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हमारे बहुत से दोस्त हैं। सर प्रोफेसर लक्ष्मी राज शर्मा सर। अच्छा अच्छा, सर चलिए। प्रोफेसर लक्ष्मी राज अच्छा शर्मा सर, वो हमारे मेंटर अच्छा, भी है चलिए। सर। जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही उसमें। सर तो थैंक एक यू वेरी मच दिवाकर चीज जी, मैं भी मिलते हैं पूछना कभी। चाहूंगी सर, प्लीज थैंक यू बता सो दीजिए। मच सर। मैं हिंदी बताइए लिटरेचर से। जी। जी सर, आईएसबीएन नंबर या और आईएसएस नंबर वाला जो पत्रिका और किताब होती है, क्या वही वैलिड होती है? उसके अलावा हमारी जो पुरानी किताबें हैं उस पे आईएसएस नंबर नहीं है, तो क्या उससे हम कोटेशन नहीं दे सकते, रेफरेंस नहीं दे सकते? आप रेफरेंस बिल्कुल दे सकती हैं। ये तो यूजीसी की इधर की कुछ ये है कि तो जो प्रमोशन दुनिया भर की, लेकिन ये है कि आप तो किसी किताब का भी रेफरेंस दे सकती हैं, आईएसएन हो नहीं हो। और किताब तो छोड़िए, अगर किसी ने आपसे व्हाट्सएप पर कोई आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है, फेसबुक पर कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम पर है कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो आप उसको, अगर आप एमएलए का लेटेस्ट एडिशन देखेंगे उसमें, तो कोई भी रेफरेंस जो है, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो फेसबुक से हो, जो क्योंकि फेसबुक पर सिर्फ तस्वीरें ही नहीं शेयर होती हैं, फेसबुक बहुत अच्छे अच्छे राइटअप भी होते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट भी होती हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी पोस्ट भी होती हैं। तो आप कुछ भी कोट कर सकती हैं उसमें। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप वो आईएसबीएन हो या आईएसएन हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसका रेफरेंस कैसे देंगे अगर इंस्टाग्राम से ले रहे हैं, फेसबुक से ले रहे हैं इत्यादि चीजें, तो उसका आप रेफरेंस? इसको देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसका रेफरेंस आप देंगी, उस राइटर का नाम देंगी जिनका है उसमें, पोस्ट का आपको दिखेंगी उसमें, उसका टाइटल है, वरना नहीं तो, और फिर वो आप जो है लिंक देंगी वहां पर उसका है इसमें। और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप एमएलए का 9th एडिशन देखेंगी, एमएलए हैंडबुक फॉर राइटर्स, इट्स 9th एडिशन, तो उसमें आपको ये ऑनलाइन भी ये चीज मिल जाएंगी आपको। है ये सब चीजें कोट की जा सकती है, इवन कन्वर्सेशन, पर्सनल बातचीत, इंटरव्यू, ये लेक्चर जो है ये, इसको भी कोट किया जा सकता है। इसमें आपको डे देना होगा, डे, और ये मतलब कहाँ का। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या वो धक्का मारना पड़ता है? हाँ जी, कहाँ? आना था, नमस्ते। अरे कहाँ है? ढा गई वैसे? हाँ, तुम चोट ही? हाँ हाँ हाँ, है? कौन से डॉक्टर भाई? राज कहाँ है? हाँ, जाई कर रहा था जो। अच्छा, वो डर गई मतलब। हाँ, और तुम्हारी क्या सेवा? हाँ, में क्या करेंगे? नहीं तो हाँ, तो हम तो हैं तो सही, मैं क्या करेंगे? तो करेंगे वो कावा में। आज तो नामांकन ही तो है ना, चुनाव रचना है, तू जा रहा है, हम तो हम तो जा रहे हैं कमालपुर, तो रात प्रवास है हमारा रात्रि में है ना, कखना होगा इन्होंने तो बादी भाई साहब ने।
हमारी कोई मीटिंग नहीं कहते, हम तो तुमका नंबर है ना, पहले तो हम सूचना दे देते, अब आप कोई अब तो कोई है हमारो 894 जी भाई साहब। हेलो नमस्कार भाई साहब। हेलो